Students, today we are going to start our next chapter of accountancy, that is admission of a partner. And in today's video we are going to see all the theoretical part of this chapter. So let us start first with the meaning of admission of a partner. Now what do you mean by admission of a partner? Whenever a new partner, a new person is admitted in an existing partnership firm, यानी जब भी आप किसी न्यू पार्टनर को अपने एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर एडमिट करते हो, दैट इज़ नोन एज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. The new partner who joins the business is called the incoming partner or a new partner. So whenever in an existing firm, for example, there are two partners A and B who are running the partnership firm, and when they decide to admit the third partner, that is suppose C, in their partnership बिजनेस विच इज़ ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, जो बिजनेस पहले ही ए और बी रन कर रहे थे, अब वो चाहते हैं कि वो सी को एडमिट करे इन अ पार्टनरशिप विच इज़ कैरिड ऑन बाय ए एंड बी बोथ. सो दिस इज़ नोन एज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. यानी जब आप किसी थर्ड पर्सन को अपने एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर लाते हो, दैट इज़ नोन एज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. Now, as you have seen in our previous chapter, that is change in profit sharing ratio among the existing partners, we had seen the various cases of reconstitution of a partnership. तो रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि आपका पुराना एग्रीमेंट ख़त्म होके नया एग्रीमेंट शुरू होता है. तो इसके वेरियस रीज़न्स हो सकते हैं, जिसमें से एक रीज़न है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. यानी जिस तरह से हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देखा था कि जब भी एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग को रेशियो को चेंज करते हैं, it result in reconstitution of partnership. In the same way, when you admit any third person in the partnership firm, that also result in reconstitution of partnership. So admission also result in reconstitution of partnership firm. It means the old agreements and a new agreement, including the third partner or the incoming partner, a new agreement come into force. Now why there is need for admission of a partner? The two main reason for which the new partner is admitted in a partnership firm is either the requirement of additional capital or managerial help, और इट कैन बी बोथ. यानी जब भी किसी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में आपको एडिशनल कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, यानी आपको और अपने फर्म को एक्सपांड करने के लिए और ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, एंड इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स टू ब्रिंग मोर कैपिटल, देन they can admit new partner in the partnership firm. So first reason for the admission of a partner can be need of additional capital. जब additional capital की ज़रूरत होगी, so you can admit another partner in your partnership firm. Or if you need managerial help, यानी अगर किसी partnership firm को managerial help की ज़रूरत है, हमने देखा है इन बिजनेस स्टडीज़ कि अगर दो फर्म्स हैं, इन दो फर्म्स के पास सेम फिजिकल रिसोर्सेस हो सकते हैं, बट इट इज़ द ह्यूमन रिसोर्स, द मैनेजर्स हु कैन टेक द बिजनेस टू द टॉप. तो अगर किसी फर्म को ऐसा लगता है कि जिस पार्टनर को वो अपने फर्म में लाना चाहते हैं वो उन्हें अच्छे मैनेजरियल हेल्प दे सकता है, तो इस कंडीशन में भी वो किसी थर्ड पर्सन को अपने पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन दे सकती है. और इफ़ दे रिक्वायर बोथ, दैट इज़ एडिशनल कैपिटल
as well as managerial help. So these are the reasons why there is need for admission of a partner. Now, admission of a partner as per Indian Partnership Act 1932. According to section 31 of Indian Partnership Act 1932, a person can be admitted as a new partner if it is so agreed in the partnership deed. यानी जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 31 जो है उसमें कहा गया है कि एक पर्सन को आप एडमिशन दे सकते हो एज अ न्यू पार्टनर इन योर पार्टनरशिप firm only if it is either stated in your partnership deed or in the absence of above if all the partners agreed for the admission. यानी ये दो केसेस है जब आप किसी न्यू पार्टनर को एडमिशन दे सकते हो अपने पार्टनरशिप फर्म में. पहला यानी अगर आपने पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई कर रखा है कंडीशंस फॉर द एडमिशन इन दैट केस, और सेकेंड इफ़ ऑल द पार्टनर्स एग्री, यानी अगर सारे पार्टनर एग्री करते हैं फॉर द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर, देन द पार्टनर कैन बी एडमिटेड इन द पार्टनरशिप डीड एंड इट इज स्टेटेड इन सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. नाउ whenever a new partner is admitted in a partnership firm, he gets certain rights. जब भी आप किसी न्यू पार्टनर को एडमिशन दोगे इन द पार्टनरशिप फर्म, देन ही गेट्स सर्टेन राइट्स. द न्यू पार्टनर्स गेट फॉलोइंग टू राइट्स, टू मेन राइट. पहला राइट होता है राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म. यानी जब भी आप किसी न्यू पार्टनर को एडमिशन दोगे अपने पार्टनरशिप फर्म में, तो जब उसका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद आप अपने फर्म को रिकन्स्टिट्यूट करोगे इन द सेम वे एज यू डिड इन द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर. और जब रिकन्स्टिट्यूशन हो जाएगा उसके बाद में जो फ्यूचर प्रॉफिट होगा, यानी एडमिशन के बाद के ईयर्स में, यानी रिकन्स्टिट्यूशन के बाद जो भी फ्यूचर प्रॉफिट होगा, द इनकमिंग पार्टनर दैट इज़ न्यू पार्टनर गेट द राइट टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट. ये उसका पहला राइट है. एंड दूसरा राइट है राइट टू शेयर इन द एसेट ऑफ द फर्म, और सेकेंड राइट उसे मिलता है एसेट पे शेयर. यानी जब भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होगी, यानी आप जब अपनी पार्टनरशिप फर्म को बंद करोगे उस टाइम पे जब भी कोई एसेट का सेल होगा, देन द न्यू पार्टनर गेट द राइट इन दैट एसेट, शेयर इन दैट एसेट ऑल्सो. सो दीज आर द टू राइट्स दैट एन इनकमिंग पार्टनर दैट इज न्यू पार्टनर गेट on his admission. First right, share in the future profit, and the second right, share in the asset. Along with the rights, he also have to share liabilities as a new partner. यानी जब आप किसी पार्टनर को एडमिशन दोगे, he not only share the future profit and share in asset, but he also get share in the liability of the business. यानी अब जब उसका एडमिशन हो जाएगा, रिकन्स्टिट्यूट हो जाएगी हमारी फर्म, तो उसके बाद में जो भी लाइबिलिटी इनकर होगी आफ्टर द रिकन्स्टिट्यूशन, नॉट बिफोर रिकन्स्टिट्यूशन, यानी रिकन्स्टिट्यूशन के बाद, एडमिशन के बाद जो भी लाइबिलिटीज़ होगी उस लाइबिलिटीज़ में भी इनकमिंग पार्टनर को अपना शेयर मिलेगा. यानी ही हैव टू कंट्रीब्यूट फॉर लाइबिलिटीज ऑल्सो आफ्टर रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ द. यस, नाउ नेक्स्ट, whenever you do the admission of a partner, now what does the new partner has to bring with him to join the partnership firm? तो जब भी आप किसी न्यू पार्टनर का एडमिशन करोगे, and for acquiring the right to share in future asset and profit of the firm, the new partner has to bring certain amount of capital in cash or kind. यानी जब भी आप किसी न्यू पार्टनर को एडमिशन दोगे अपने पार्टनरशिप फर्म में, तो वो कुछ अमाउंट
एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा अपने एडमिशन के टाइम पे, यानी जब भी नए पार्टनर का एडमिशन होगा ही विल ब्रिंग सर्टेन अमाउंट एज हिज कैपिटल आइदर इन कैश और इन काइंड। सेकेंडली, पहले तो वो अपना कैपिटल लेके आएगा, और दूसरी चीज़ बिकॉज ही इज़ गोइंग टू गेट द शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। अगर इनकमिंग पार्टनर को फ्यूचर प्रॉफिट में शेयर मिल रहा है, इसका मतलब ये शेयर एग्जिस्टिंग पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है। यानी जब हम कह रहे हैं कि दो पार्टनर्स थे ए एंड बी, दे वर शेयरिंग द प्रॉफिट इक्वली, और अब वो सी को एडमिट कर रहे हैं पार्टनरशिप में, सो इन फ्यूचर दे आर गोइंग टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट अमंग द थ्री पार्टनर्स। यानी पहले जो प्रॉफिट दो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, अब ये प्रॉफिट तीन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका मतलब है ए और बी ने अपना कुछ शेयर सेक्रीफाइस करके सी को दिया है। And to compensate such partner, that is sacrificing partner, for their sacrifice of share, the incoming partner will also bring premium for goodwill। यानी incoming partner अपने capital के साथ साथ कुछ amount और लेके आएगा to compensate the sacrificing partner, and that amount will be known as premium for goodwill, which will be given to the partners in their sacrificing ratio। एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, यानी हमने अब देख लिया कि व्हाट डू यू मीन बाय एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, देन what will be the rights of an incoming partner, what all contribution he is going to make at the time of admission, all these things। Now जब आप रिकन्स्टिट्यूशन करोगे तो कौन कौन सी एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी, यानी जब भी आप किसी फर्म का रिकन्स्टिट्यूशन करोगे एंड इफ़ द केस इज़ रिलेटेड टू एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तो इन द सेम वे एज यू डिड इन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो आपको फर्म को पहले रिकन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा और उस टाइम पे कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, और वो एडजस्टमेंट सबसे पहला होगी रिलेटेड टू कैलकुलेटिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड आफ्टर दैट कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यानी सबसे पहली एडजस्टमेंट जो होगी वो होगी रिलेटेड टू calculation of new profit sharing ratio, and after that calculation of sacrificing ratio। Here you are not going to calculate gaining ratio। जब आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते थे तो उसमें एडजस्टमेंट होती थी टू कैलकुलेट गेनिंग एज वेल एज सेक्रीफाइसिंग रेशियो, बट यहाँ पे क्योंकि इनकमिंग पार्टनर आ रहा है तो सेक्रीफाइस किया जाएगा फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, एंड सो देयर इज़ नीड टू कैलकुलेट ओनली सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो एडमिशन के टाइम पे सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है एंड नॉट द gaining ratio। Then after calculating the ratios, that is new ratio and sacrificing ratio, third treatment will be related to goodwill in the same way as we did at the time of change in profit sharing ratio। Then next treatment will be related to revaluation of asset and reassessment of liabilities। So this treatment will also be same as change in profit sharing ratio among the existing partner, and in the same way we are going to do the treatment of distribution of reserves and accumulated profit or loss। यानी हमें वही 5 एडजस्टमेंट फिर से देखनी होगी जो हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देखी थी। सबसे पहले हमने वहाँ पे कैलकुलेट किया था न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, बट यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है सिर्फ न्यू रेशियो and sacrificing ratio। Then second treatment will be related to goodwill, same as we did in change in profit sharing ratio, but difference यहाँ पे ये होगा कि incoming partner अपना शेयर गुडविल का कैश में लेके आएगा, and that will be known as premium for goodwill। So one entry will be different from that of change in profit sharing ratio। Then next आपका revaluation same as you did at the time of change in profit sharing ratio among the existing partner,
and same for the distribution of reserves and accumulated profit or loss. So we are going to see these 5 adjustments in our coming videos.